गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट हमने वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज पल्मोनरी वॉल्यूम एंड व्हाट आर द पल्मोनरी कैपेसिटीज। नाउ आई एम गोइंग टू रिकॉल दैट pulmonary volume. First is pulmonary volume. Pulmonary volumes क्या हैं? These are the pulmonary volume. These are the volume of air entered in lungs. और वॉल्यूम क्या कौन कौन सा था? फर्स्ट था IRV. IRV क्या है? डैट इज़ द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कि अगर हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट एयर का जो एंटर हो सकता है डैट इज़ द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकेंड क्या था? ERV। सेम अगर हम फोर्सफुली एक्सेल करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट जो एयर का एक्सेल कर सकते हैं डैट इज़ द ERV। तीसरी वॉल्यूम क्या थी? डैट इज़ TV, टाइटल वॉल्यूम। तो टाइटल वॉल्यूम क्या होता है? टाइटल वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम of air which can be inhaled or exhaled in normal breathing. Means tidal volume, that is the for the normal breathing, when we can inhale or exhale for normal breathing. But IRV and ERV are the you can say that is the volume of inhaled or exhaled air that is forcefully. Expiratory, that is when we exhale forcefully, and inspiratory when we inhale forcefully, maximum air which we can take. And last is reserve volume, or it's not reserve, residual volume. Residual volume क्या होता है? Residual volume is the volume that always present in lungs even after the forcefully exhalation. अब इन चारों की कॉम्बिनेशन से that may be the combination of NA2, that may be the combination of NA3, that may be the combination of NA4. इन कॉम्बिनेशन से मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4 फॉर्म होता है पल्मोनरी कैपेसिटीज़। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को हम PC लिख सकते हैं। अब पल्मोनरी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग अगर हमने देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पल्मोनरी कैपेसिटीज़। फर्स्ट इज कॉल्ड द दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? IC। अभी बताया था IRV, that is the inhaled reserve volume, means कि that we inhale forcefully, plus tidal volume that we inhale the air at normal breathing. So that total volume means combination of these two volume is called the inspiratory capacity. Second also same expiratory capacity. Expiratory capacity is in exhaled reserve volume plus tidal volume. Next is functional residual capacity. Functional residual capacity is the capacity of lungs, FRC, that can be written as FRC, that is the inspiratory reserve volume plus residual volume, that is also the combination of two. Now third one is vital capacity. Vital capacity is the volume of air that can be expelled from the lungs after
filling the lungs to the maximum exhalation and maximum inspiration. तो maximum exhalation कब हुआ? When ERV, maximum inspiration IRV, and that is tidal volume plus tidal volume, that is the normal inhalation and normal exhalation. So combination of these three volume is called the vital capacity. And last one is total lung capacity, that is the combination of vital capacity plus residual volume, or you can say कि that is the combination of all four type of volumes, because vital capacity is the combination of three type of volumes. So total lung capacity will be the combination of all four volumes. Now come to the next point, that is carbon monoxide poisoning. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है? पॉइजनिंग से जनरली क्या कहते हैं कि वी कैन गो लीड टू द डेथ एंड वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ, वी आर नॉट एबल टू रेस्पायर, वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव आफ्टर पॉइजनिंग. तो यहाँ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ज़्यादा पॉइजनस बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉइजनस क्यों है? बिकॉज इट कैन नॉट अंडरगोज द ऑक्सीडेशन इन बॉडी easily, or it cannot remove from the body by the normal process of exhalation. And hemoglobin has about 250 times more affinity for कार्बन मोनोऑक्साइड देन द ऑक्सीजन. ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी टू द कार्बन डाइऑक्साइड, बट इट हैज़ मोर एफिनिटी देन द कार्बन मोनोऑक्साइड. मीन्स अगर हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो hemoglobin has maximum affinity with carbon monoxide and least affinity with oxygen. That is also the problem. So that's why that time partial pressure of oxygen work, temperature also work, and pH also work. And due to the presence of hydrogen ion, due to the less amount of hydrogen ion, combination changes means कि oxygen can bind with the hemoglobin. and ये already आपको dissociation graph में मैं बता चुकी हूँ. Now in the presence of carbon monoxide, it readily combined to form the stable compound called carboxy hemoglobin. It is stable means which cannot break down, but when hemoglobin binds with oxygen, it is not stable, it is partially stable. but कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो इट कैन नॉट ब्रेक डाउन इजली. द ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस. एज द रिजल्ट टिश्यूज सफर फ्रॉम ऑक्सीजन starvation, and it leads to the lack of oxygen, lack of energy in the tissues, and that condition is called the aspirillation, and it cause the death. क्या होगा कि जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिला तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल्स अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे. सेकेंड थिंग कि ऑलरेडी इसके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड इट विल ट्रांसपोर्ट द कार्बन मोनोऑक्साइड टू द ब्लड. एंड अब जब डिक्रीज होगी ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी,
तो भी बाकी सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुँच वैसे भी लेस हो जाएगा. तो that type of condition is called the carbon monoxide poison. Now goes to the treatment. Treatment कैसे होता है? Person need to be administered with pure oxygen carbon dioxide mixture. जनरली जो हम इनहेल करते हैं, इनहेल्ड गैस में हमारे पास ऑक्सीजन, carbon dioxide and other gases, all gases are present which are present in atmosphere. Just you can say कि if we inhale the air, जो inhaled gas होती है that having the 20 to 84% of oxygen and a 0.03 to 0.04% carbon dioxide, 78 to 62% nitrogen. It depends कि हमारा ऑक्सीजन कितना लिया है हमने उस टाइम. And water vapors approximate 5%. And dust particle may depend on the where we are breathing. That is the inhaled air. But when it reaches to the alveolus, it get change. Oxygen amount of oxygen reduces from 20 approximate 20 to और मैंने क्या बताया था, inhaled air में that is approximate 20 to 28. But now it get reduces and it reaches to the 13.6%. So inhaled air having the oxygen about 20 to 28%, but when it reaches to the alveoli, it is about 13.6%. And when we exhale, it is about 1.57%. Now same carbon dioxide. Carbon dioxide is when we inhale, it is 0.03 to 0.04%. But when air reaches to the alveoli and alveolus also already having some carbon dioxide which exhaled, or you can say which come from the tissues, so amount of carbon dioxide increases and that reaches up to the 5 to 3%. Same nitrogen, inhaled air having approximate 78% nitrogen, but in alveolar it is about 74.9%, and in exhaled air it is also 74.5. Means you can say very less amount of nitrogen can be entered in alveoli. Water vapors approximate 5%, but when they reaches to the alveoli, or you can say this air reaches to the alveoli, तो alveolar air having the 6.2%. अब आप बेटा इससे क्लियर करना है कि alveolar air जो होती है that is suppose it is atmospheric air which we inhaled, and alveolar air क्या होती है, that is the air which is present in alveoli. That may be their composition is according to the air, या you can say gases come from the tissues से जो gases आए, blood vessels से gases आई जो हमने inhale की है, उनके combination से जो gases का combination बना, that is the exhale. So वहाँ पे ये variation आ जाती है. अब ये चीज़ें क्या करती हैं कि अगर इनके कॉम्बिनेशन में डिफरेंस आ जाए, इनके कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, तो दे कॉजेज द सम एबनॉर्मलिटीज़. सेम यू कैन से कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे कॉज कर सकती हैं. अब ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है कि जब हमने कम टू द सेम पॉइंट, हम क्या देंगे, प्योर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर.
जिससे जो ये गैसेस थी, जो इतने सारे गैसेस जस्ट लाइक नाइट्रोजन गया, वाटर वेपर्स गए, डस्ट पार्टिकल्स गए, वो चीज़ें ना जाए, सिर्फ ये दो गैसेस जाएँ। और जब ये दोनों गैसेस जाएंगे तो ये अब इसमें ऑक्सीजन लेवल को बहुत हाई लेवल पे रखा है। मीन्स कि ऑक्सीजन जो हमने इनहेल्ड गैस थी उसमें अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 28% था, डेट इज़ हैविंग द 20 to 28%। बट जो अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर था उसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा लेवल था, डैट में बी अबाउट 95%। तो 95% के अराउंड अगर हमने ऑक्सीजन दी है तो मीन्स कि हमें एक एक्सटर्नल उसमें फोर्सफुली ऑक्सीजन को एंटर कराना पड़ेगा। और ड्यू टू दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, और जब पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट होना शुरू हो जाएगी हीमोग्लोबिन से, एंड व्हेन इट गेट डिसोशिएट इट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो मेन थिंग क्या है कि उसे डिसोशिएट करना है। सेम ऐसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे उससे डिसोशिएट नहीं होगी तो वो एक्सेल नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का बाइंडिंग और कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोशिएशन, और यू कैन से कि बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन का डिसोशिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे वो बाइंड कर रहे हैं और कहाँ पे वो डिसोशिएट कर रहे हैं। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोशिएशन, और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का डिसोशिएशन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग। तो बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर दे टेक्स प्लेस एंड वेयर इट गोज़ टू द बाइंड। तो डिसोशिएशन और कंबाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंप्लीट। Now carbon monoxide poisoning occur often closed room with open stove, burners or furnace in garages having running automobile engines। एंड जनरली हम सुनते भी हैं कि विंटर्स में हिली एरियाज़ में उन्होंने कुछ लोग अपने रूम में अंगीठी जलाते हैं या हीटर जला रहे हैं, एंड सुबह वो क्या मिलते हैं, डेथ मिल रही है। कई बार गैस गीज़र से भी ये चीज़ें मिली। तो मेन चीज़ क्या हो जाती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ मोर एफिनिटी टू बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, सो विच कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। नाउ कम टू द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू गिव द एनर्जी एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड। तो ये कंट्रोल जो होता है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मेन दैट इज़ बोन्स, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सेंटर को जो अगर हम कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, उसे हम डिवाइड करते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, न्यूमोटॉक्सिक एरिया एंड कीमोसेंसिटिव एरिया। Pneumotoxic area and chemosensitive area. First come to the dorsal respiratory group. Dorsal respiratory group. Dorsal respiratory group is also known as inspiratory area. It is mainly located in medulla and it located dorsally, so it is called the dorsal respiratory group. It sends the signal from its neuron and produce the basic respiratory rhythm. And what you can say, what is the basic respiratory rhythm? How we break down, how cells break down the food. तो उनका जो प्रोसेस है उसे एक मेंटेन करना, एक उस दैट इज़ द रिदम।
Dorsal respiratory group send ramp signal to the inspiratory muscles for about 2 seconds and become silent for next 3 seconds. मीन्स 2 सेकेंड के लिए दिया, नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए, तो कॉन्टिन्यूटी में जो पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ डेट गेट कंप्लीट. सेकेंड इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. Ventral respiratory group, as the name denotes, it is located at ventral part of medulla oblongata. That's why it is called the ventral respiratory group, and it is also called the expiratory area. Normal inspiration is controlled by the inspiratory area, and expiration is controlled by the expiratory area, and it also stimulates the forceful inspiration and expiration. Sometime when we need, so you can say medulla respiratory center control the inspiration as well as expiration of the cell. Now come to the next, that is chemosensitive area. Chemosensitive area क्या होता है? Chemosensitive area is the area which present in ventral surface of medulla, and that time it receive partial pressure of carbon dioxide. Means you can say कि sensory neurons when receive partial pressure of carbon dioxide, they increase the hydrogen ion concentration. They receive the hydrogen ion concentration and partial pressure of carbon dioxide. They send the signal and they activate the chemosensitive area. अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्लाज्मा में, या हम ये कहें पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो हाइड्रोजन आयन भी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई, एंड व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गेट इंक्रीज, दैट टाइम दिस सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलेट द ब्रेन, एंड ये क्या करते हैं, जो इसके कीमो रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, वहाँ उसे एक्टिवेट करते हैं, एंड दे सेंड द इंफॉर्मेशन फॉर कीमो रिसेप्टर सिस्टम which have chemoreceptor outside the brain. अब वो क्या कर रहे हैं, डिटेक्टिंग द चेंज इन pressure, partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion and ion concentration to the lesser extent. That time maximum number of these chemoreceptor are located in carotid body and एरोटिक बॉडी. कैरोटिक बॉडी क्या होती है? कैरोटिक बॉडी की जहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में होगा वह है जहाँ आर्टरीज डिवाइड हो रही हैं, बाइफर्गेशन हो रहा है उनका, दैट टाइम दे आर प्रेजेंट एंड दैट एरिया दे आर प्रेजेंट. और एयोर्टिक बॉडीज़ क्या होती है कि एयोर्टिक बॉडीज़ एट द आर्च ऑफ एयोर्टा, वो दोनों के दोनों ये प्रेजेंट है, और ये मैक्सिमम नंबर जो कैरोटिड्स का है यहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो उसके प्रेशर को कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं. कंपैरेटिवली डिक्रीज़ करेंगे तो जब उसके प्रेशर को, मतलब ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करेंगे और उसके प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, तो दैट टाइम दे डिक्रीज द वेंटिलेशन, एंड अगर कार्बन they inhale more amount of oxygen. Now that is written as like this.
Chemoreceptors are located in carotid and aortic body. Carotid क्या हो गए? Bifurcation of arteries, and aortic है the arch of aorta. Afferent nerve fibers are called of afferent nerve fibers of carotid bodies pass through the gasopharyngeal nerves to the dorsal respiratory area, or afferent nerves of pass through the vagus nerve dorsal respiratory area. अब ये जो वो पास कर रहे हैं ये यहाँ पे excess carbon dioxide and hydrogen respiratory center and according to the inspiratory and expiratory respiratory muscles में इसके इन्होंने जस्ट क्या किया कि उन्हें स्टिमुलेट हुआ, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हुई, एक्टिवेट किया, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज हुआ, उन्होंने कीमो रिसेप्टर को इंक्रीज किया. तो कीमो रिसेप्टर ने किस लिए बोला कि बिकॉज दे एक्टिवेट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो उन्हें एक्टिवेट कर रहे हैं और फाइनली क्या करते हैं कि वो सिग्नल भेजते हैं हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को. रेस्पिरेटरी मसल्स क्या करेंगी कि अपना वर्क थोड़ा कंपैरेटिवली फास्ट करेंगी और वो उस कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज़ करेंगी और ऑक्सीजन का इनटेक ज़्यादा करेंगी. और वो फाइनली क्या करते हैं कि पीएच को रिड्यूस कर देते हैं. इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड पीएच रिजल्टिंग, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो सबसे पहले क्या होगा, एल्वोलाई से बाहर गया और ऑक्सीजन का इनटेक इंक्रीज हो गया. दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. क्योंकि जब तक वो सेल्स में जाके, सेम अभी आपको बताया था कि दे हैव मोर एफिनिटी टू द हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी टू द कार्बन डाइऑक्साइड देन द ऑक्सीजन. तो जब तक रेस्पिरेटरी सेल्स में सिग्नल्स नहीं जाएंगे, दे विल नॉट इंक्रीज, दे विल नॉट स्टिमुलेट द सेल्स और दे विल नॉट स्टिमुलेट द टिश्यूज़. तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना या प्रेशर उसका इंक्रीज़ करेंगे, जिससे वो प्रेशर ऑक्सीजन वहाँ से दूसरी साइड जाए और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ था वो उसके साथ बाइंड हो जाए, दैट गेट एक्सेल्ड.